हाँ बता, बीच में इंटरेक्ट करते रहिए, देखिए हमें क्लैरिटी होती है तो मतलब आगे आगे में आसानी होती है, वरना हमको पता ही नहीं चलता है कि आप लोगों को क्लियर हुआ नहीं हुआ. Functions semi-permeable. It allowed lipid-soluble substances to enter into the cell or leave the cell, like example oxygen and carbon dioxide. Barrier for the aqueous environment. Plasma membrane, barrier for the aqueous environment. Aqueous soluble substances like sodium, potassium, water. But these substances also enter into the cell with the help of special proteins, and they are called channels, carriers proteins. They help in transport across the membrane. Proteins, they are peripheral proteins. Again, peripheral protein may be classified intrinsic proteins and extrinsic protein. Functions हमने आपको पहले ही डिस्कस कर लिए हैं इसमें. ये इंटीग्रल प्रोटीन है. There are 6 type of integral protein depending upon the rotation they do in the lipid bilayer. देखिए type 1, type 2, type 3, type 4, type 5. Okay. Functions of the integral protein, channel protein, watery channel, carrier protein, transport across membrane. सोडियम पोटेशियम पंप की आज थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग. Functions of the plasma membrane, cell boundaries, provide shape to the cell, maintain ionic gradient, maintain volume of the cell, transport across cell to cell attachment. ये सब एलोबरेट करना है आपको. Enzymatic function, हमने यहाँ list of cellular functions performed by the plasma membrane. Receptor for hormone and second messenger. Immune function, resting membrane potential, generation and transmission of action potential, secretory and excretory functions. Now, because of the membrane, what will happen? There is an aqueous environment inside to the membrane, there is a environment outside. अब ये जो membrane है, अब देखिए इससे क्या हो रहा है कि डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. डिफरेंस क्रिएट का मतलब क्या है कि एनवायरमेंट तो एक्वस है, लेकिन सोडियम कहाँ ज्यादा है, इंट्रासेल्युलर या एक्स्ट्रासेल्युलर? Extracellular. How much? 142 milliequivalent per liter extracellular. We measure these electrolytes in terms of millimoles or milliequivalent per liter. These two are commonly used units और ये interchangeable भी होती हैं. Inside sodium is kept low by some mechanism. अब आप ये देखिए membrane जो है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रही है और उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एंड दिस इज परफॉर्म बाय विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्या नाम कहते हैं उसको? पोटेशियम क्या है इनसाइड सेल? हाई है, लो है? आउटसाइड इट इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इट इज 4 milliequivalent per liter, but inside it is 140 milliequivalent per. If you compare the sodium with potassium, you will find high sodium in the extracellular fluid and low potassium in the extracellular fluid. So there is a concentration gradient from interior, concentration difference है दोनों के लिए. One will move in one direction. सोडियम के लिए concentration gradient कहाँ से है? एक्सटीरियर से इंटीरियर की तरफ, और पोटेशियम के लिए कहाँ से? इंटीरियर से एक्सटीरियर की तरफ. लेकिन ये concentration gradient कैसे क्रिएट हो रहा है? What mechanism is responsible for the what system is responsible for creating this concentration gradient? Membrane is actively contributing to this concentration gradient. आप जानते हैं normally there is a concept of diffusion, but what system is responsible? कौन बताएगा? कौन सा पंप है वो जो काम करता है? उसका आप लोगों ने नाम सुना होगा. सोडियम पोटेशियम पंप. Very good. Sodium potassium pump is an active pump. What हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, diffusion. There is simple diffusion across the membrane, facilitated diffusion, but there is no consumption of energy. The molecule are moving in the direction of the concentration gradient, high concentration towards the lower concentration. But here the situation is totally opposite to the diffusion. Substances are moving from low concentration towards the higher concentration with the help of a special system called active transport. And there are special proteins, and this protein is named as sodium potassium pump. क्या कहते हैं इसको हम? सोडियम. अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी देखिए, अभी आगे बात आएगी. अब डिसऑर्डर्स ऑफ मेम्ब्रेन अगर देखें क्या हो सकता है, पंप का कोई डिफेक्ट हो जाए तो क्या होगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाती है. कौन से पंप का होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में? कैल्शियम आयन चैनल.
हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, इसमें भी क्या होता है, टाइप 2 एपिथेलियल सेल्स में डेफिशिएंट सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन होता है। एल्जाइमर्स में क्या होता है, एल्जाइमर्स में क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, अभी हमने बताया ना लिपिड बाइलेयर फॉस्फेट नेचर, वो फॉस्फोलिपिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब जब मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो सेल के फंक्शंस भी डैमेज हो जाएगी। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें एक प्रोटीन होती है डिस्ट्रोफिन, जो मेम्ब्रेन और उसके बीच में एक्टिन मायोसिन के बीच में फोर्स को कम्युनिकेट करती है। अटैचमेंट होता है एक्टिन मायोसिन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और फोर्स को ट्रांसमिट करती है। तो ये डिफेक्टिव हो जाएगी तो क्या होगा, देयर विल बी डिफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्टिन मायोसिन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो फोर्स विल बी ट्रांसमिटेड टू फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल एंड देयर विल बी जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो डिस्ट्रोफिन, अब ये ड्रग्स भी यूज करते हैं जिसमें कि ऑर्गेनिज्म को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप डैमेज कर दिया ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस की, तो क्या होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएंगे। पॉलीमिक्सिन बी, डेप्टोमाइसिन कॉमनली यूज अगेंस्ट लोकल एप्लीकेशन करते हैं, इंजेक्शन नहीं करते हैं, लोकली अप्लाई करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। दे विल प्रोवाइड गुड प्रोटेक्शन एंड दे विल किल द ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, नॉट द जिसको इन्फेक्ट कर रहा है। मेम्ब्रेन पे और भी फंक्शन होते हैं, सेल ईटिंग फेगोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इसका हमने डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ लास्ट टाइम कर लिया था। और जब सेल फेगोसाइटोसिस के बाद क्या होता है कि सब्सटेंसेस दे आर डिसॉल्व्ड डिसइंटीग्रेटेड बाय द लाइसोसोम्स। अगर लाइसोसोम डेफिशिएंट हो, एंजाइम डेफिशिएंट हो, तो क्या हो जाएगा, लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। वन एग्जांपल इज, देयर आर 4-5 एग्जांपल लिस्टेड हियर, यू कैन रीड इट। टेकीसेकी डिजीज हमने आपको बताया था। क्या होता है टेकीसेकी डिजीज में, व्हाट विल बी द प्रेजेंटेशन, बताइए, व्हाट विल बी द प्रेजेंटेशन? retardation. No answer. Mental retardation because of the accumulation of the degraded product of ganglioside, fatty acid होता है वो भी, ठीक है ना। कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है, हेक्सोअमाइनिडेज ए विल बी डेफिशिएंट। सो ये इसका एक्युमुलेशन हो जाएगा और न्यूरॉन्स में एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसके क्या होता है कि न्यूरॉन्स में एक्युमुलेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि न्यूरॉन्स के फंक्शंस प्रॉपर नहीं होंगे, और फंक्शन प्रॉपर नहीं होंगे तो इंटेलिजेंस विल बी रिड्यूस और डिक्रीज, रिजल्टिंग इन मेंटल रिटार्डेशन। इंटेलिजेंस कहां से आती है, इंटेलिजेंस इज अ फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, it is a function of neurons. If neurons are functioning properly, there will be normal intelligence. अब बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, व्हाट आर द बॉडी टोटल बॉडी फ्लूइड? टोटल बॉडी फ्लूइड को हमने दो मेन कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। और उसी में एक्स्ट्रा सेलुलर को फिर फर्दर डिवाइड किया है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्लाज्मा एंड स्पेशल फ्लूइड कॉल्ड ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ठीक है। देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर इनटेक, फ्लूइड इनटेक है नॉर्मल, देयर इज आउटपुट, इसमें बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना होता है, नॉर्मली इफ यू मेजर इट इज 28 लीटर्स, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना है 11 लीटर्स, प्लाज्मा कितना है 3 लीटर्स, एक्स्ट्रा फ्लूइड कितना है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है 14 लीटर। दिस एन एवरेज वैल्यूज फॉर एन इंडियन तो नहीं है, ये अमेरिकन डेटा है, अमेरिकन बुक है, तो ये एडल्ट का डेटा है, एडल्ट का डेटा है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस आपको मैंने पहले भी बता दिया कि डिफरेंस होगा। कार्बोहाइड्रेट्स जो है कंज्यूम हो जाते हैं, ग्लूकोज कम हो जाता है, सेल के अंदर कंज्यूम होता रहता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज्यादा होगा। सब ऑलरेडी हम लोगों ने देखिए यहाँ पर वैल्यूज आ रही हैं। ऑक्सीजन लो होगा सेल के अंदर क्योंकि इट इज कंज्यूम बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, बट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी हाई बिकॉज ऑक्सीडेशन विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। सो इनसाइड द सेल देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है हम लोगों ने, बेसिक बात करें। बॉडी कैसे रेगुलेट करती है, फीडबैक थ्रू हाउ दे रेगुलेट देयर फंक्शंस। एक फंक्शन शुरू हुआ, एक मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ तो क्या होता चला जाएगा, नो इट विल स्टॉप। देयर आर रेगुलेटरी मैकेनिज्म that will control the cellular functions and these mechanisms are called feedback mechanism. Normally body there is a two type of feedback mechanism, negative and another one is what, एक नेगेटिव फीडबैक होता है, दूसरा कौन सा होता है, Positive. पॉजिटिव। बॉडी में कौन सा ज्यादा रोल प्ले करता है, Negative. नेगेटिव। कौन सा है, कोई एग्जांपल बताओ,
सारे ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, बॉडी फ्लूइड्स, T3, T4, thyroid hormones, blood glucose level, they are all regulated by negative feedback system. जब भी कभी एग्जाम्पल आए तो ये सारे एग्जाम्पल, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, blood pressure, T3, T4, all the hormones are regulated, most of the hormones are regulated by negative feedback. What is the negative feedback? Initiating जो end product होता है, that will cause decrease in the, that initiates certain phenomena that decreases the initiating process. जो चीज end product बन के आई वही जाके जो है आके रोक देती है initial process को, उसको कहते हैं negative feedback. पॉजिटिव फीडबैक के क्या एग्जांपल है? ये अक्सर वाइवा में पूछा जाता है. गिवन ए पॉजिटिव फीडबैक, इट इज विशियस साइकिल. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डेंजरस इन द बॉडी. पैथोलॉजीज में क्या होता है, कार्डिक फेलियर में क्या होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक डेवलप हो गया तो हार्ट फेलियर हो जाएगा. ठीक है, उसमें उसको रिवाइव करना फिर बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल if heart failure goes into positive feedback. But normally there are few mechanisms that are also provide beneficial effect to the body when they are regulated by positive feedback. What is the example? Parturition, micturition, और बताओ. ब्लड कोगुलेशन, वेरी गुड. और बताओ. platelet surge, impulse transmission. हाँ, बहुत वेरी गुड. आप लोगों ने पढ़ा है. clotting of blood, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, वेरी गुड वेरी गुड. ये एग्जाम, ये वाइवा के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर्स के. तो टीचर अगर बताते हैं तो स्टूडेंट्स कम सुनते हैं, और जब स्टूडेंट बताते तो सब लोग सुनते हैं, ज्यादा अटेंशन से सुनते हैं. देखो हमारा दोस्त क्या बता रहे हैं, हमारे कोलीग क्या बता रहे हैं. ठीक है, टीचर के भी सुनते हैं, लेकिन कोई कोलीग बोलता है तो ज्यादा नेचुरल जो है ना, वो क्या कहते हैं, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है. ये देखिए स्वेटिंग हो रही है, हाई टेम्परेचर हो रहा है. अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तो स्वेटिंग इज अ मैकेनिज्म दैट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. अगर विंटर्स हैं तो क्या होगा, शिवरिंग हो जाएगी. शिवरिंग विल प्रोड्यूस हीट एंड दिस विल एलिवेट द बॉडी टेम्परेचर. ये सब मैकेनिज्म है. अब इसमें कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ गेन. कितनी करेक्शन हुई और कितनी एरर रह गई, दैट इज कॉल्ड गेन ऑफ द फीडबैक सिस्टम. ओके, इसी तरह से अब इनका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फीडबैक सिस्टम? टू मेंटेन हीमोस्टेसिस. क्या फंक्शन है? हीमोस्टेसिस को मेंटेन करना. हीमोस्टेसिस क्या है? ये मेंटेनिंग द कांस्टेंट कंडीशन, कांस्टेंट नॉर्मल कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट. तो बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो अब ऐसा है कि ग्लूकोज बढ़ता ही चला जाए, थायराइड T3 T4 सिक्रीट करते चले जाए, तो क्या होगा? देयर विल बी एबनॉर्मलिटी, देयर विल बी पैथोफिजियोलॉजी. अगर बॉडी ने हीट शिवरिंग शुरू कर दी, शिवरिंग को स्टॉप होना जरूरी है ना. अगर शिवरिंग स्टॉप नहीं होगी तो क्या होगा कि वो सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी. या मान लिए स्वेटिंग स्टार्ट हो गई तो क्या होगा? देयर विल बी डेप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, सो देन देयर विल बी डिहाइड्रेशन. तो एट सम स्टेज देयर मस्ट बी चेक. अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कर गया है तो स्वेटिंग मस्ट स्टॉप, एंड दिस व्हाट वी कॉल्ड होल सिस्टम इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस. दी रेगुलेटरी सेल के फंक्शंस और रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मेन टास्क ये है, ऑब्जेक्टिव ये है, टू मेंटेन द हीमोस्टेसिस. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इसको समझना इसलिए जरूरी है. यू कैन नॉट रियलाइज हीमोस्टेसिस अंटिल देयर इज पैथोफिजियोलॉजी. नॉर्मली आप लोगों को रियलाइज नहीं होता है, सब हेल्दी होते हैं, लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तब ये पता चलता है कि हमारी हीमोस्टेसिस डिस्टर्ब हो गई है. एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एनी डिसऑर्डर, ज्यादातर क्या होता है कि पेशेंट गोज इनटू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर. मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का मतलब क्या है कि जो सारे ऑर्गन्स हैं, और बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, एंड मल्टीपल ऑर्गन मतलब क्या है? वन ऑर्गन फेल, it lead to the failure of another organ. When another organ fails, more organ will fail, and this will lead to what? Multiple organ failure. And what is the task? Your task is to maintain the hemostasis. अब इसको कैसे ट्रीट करते हैं? बहुत ही आसान तरीका है, वेरी सिंपल वे. जस्ट स्टार्ट, जो हेमोस्टेसिस में डेफिसिट हो गई है उसको आप मैनेज करें. सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके जो केयर यूनिट्स होती हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स होती हैं, आईसीयू, सीसीयू, इन सब का फंक्शन क्या होता है? हीमोस्टेसिस को अचीव करना. यू ट्राई टू अचीव हीमोस्टेसिस बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम. जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको आप ट्रीट करते रहिए.
ये देखिए हेल्दी में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर विल डिक्रीज होता है, सॉरी बॉडी टेम्परेचर विल इंक्रीज, सॉरी इट इज जस्ट स्लिप ऑफ टंग, when there is infection then their body temperature will because there will be the increased metabolism, this will raises the body temperature. 98.6 नॉर्मल है और बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, टॉक्सिन्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उस पर जाकर टॉक्सिन एक्ट कर देता है और क्या होता है कि बॉडी हीट कम लॉस करती है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। अगर 107 डिग्री के बियॉन्ड चला जाए, दिस विल कॉज डेथ। इट विल रीसेट द बॉडी, रीसेट जो सेट पॉइंट है, आपको जब आप सीएमएस पढ़ेंगे तो सेट पॉइंट है, टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें सेट पॉइंट है, कोर बॉडी टेम्परेचर है कंसेप्ट है, तो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा कि देयर विल बी हाइपरथर्मिया। हम फीवर बोलते हैं नॉर्मल वर्ड्स में, बट टेक्निकल वर्ड में इट इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। कॉजेज ऑफ दी, बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे पैथोलॉजी में। इन्फेक्शन ऑफ इंजरी, हाइपोपरफ्यूजन, हाइपरमेटाबॉलिज्म, प्राइमरी कॉजेज, अनकंट्रोल्ड, देयर आर मेनी, सो मेनी हाइपोथेसिस। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, सबसे पहले रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, followed by liver failure, followed by GI bleeding, followed by kidney failure, followed by the person goes into, इसकी ये hypothesis है, gut hypothesis, endotoxin macrophage hypothesis, and there are so many hypotheses. अब स्टेज 1 में क्या मिलेगा आपको, किडनी फेलियर हो रहा है तो ओलिगुरिया, हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा। स्टेज 2 टेकेपनिया, हाइपोकैपनिक, हाइपोक्सीमिया, दीज आर द लीवर डिसफंक्शंस एंड लीवर डिसफंक्शंस मिलेंगे। ये रेस्पिरेटरी है, अटैक एपनिया। स्टेज 3 में क्या होगा, शॉक विद एजोथीमिया, एसिड बेस डिस्टर्बेंसेस, कोगुलेटरी एबनॉर्मलिटीज। स्टेज 4 वैसोप्रेसिन डिपेंडेंट शॉक, पेशेंट विल गो इनटू शॉक, कार्डियक फेलियर हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगी। अब ये तो असाइनमेंट में हमने आपको ट्रांसपोर्ट बताया था। अब ट्रांसपोर्ट में क्या है, देखिए सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, दिस कम्स अंडर डिफ्यूजन and this there is no consumption of energy, but active transport में there is consumption of energy. Why? Because the substance is transported against the concentration gradient. अब ये तो हम लोगों ने बात कर ली थी। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सिंपल डिफ्यूजन फॉलो होगा और एक कैरियर प्रोटीन जो है इन्वॉल्व होती है। ये देख रहे हैं ना, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ये एक इक्वेशन हमने आपको बताई थी कि डिफ्यूजन इज directly related to difference in concentration, area, and the solubility. T is the distance and the molecular weight of the diffusing substance. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्लिनिकली बहुत काम में आती है। ये एग्जाम्पल है फैसिलिटेड डिफ्यूजन का, जहाँ कैरियर ट्रांसपोर्ट हेल्प कर रहा है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को इनटू द सेल। इफ यू कंपेयर सिंपल डिफ्यूजन विद फैसिलिटेड डिफ्यूजन, यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को चेंज करेंगे तो लीनियर कर्व आता है सिंपल में, पर फैसिलिटेड में क्या होता है, देयर इज इंक्रीज फॉलोड बाय फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर, ग्लट 1 2 3 4 5, ये सब ट्रांसपोर्टर्स हैं। इसी तरीके से एक्वापोरिन्स हैं, वाटर ट्रांसपोर्टर इन किडनी, ये सब मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं। हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। when we read kidney we will talk details, blood glucose metabolism पढ़ेंगे तो हम लोग इंसुलिन का फंक्शन पढ़ेंगे, पर यहाँ पे सिंपल हम आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं कि भाई मेम्ब्रेन पे कैसे काम करता है, ठीक है ना। अब स्पेशल प्रोटीन्स, अब जो एक्वस सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं एक्वस द सेल, बाय स्पेशल प्रोटीन चैनल्स। उसमें कौन सा एग्जाम्पल था, सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स। अगर सोडियम चैनल की प्रॉपर्टीज क्या है, तो 0.3 by 0.5 नैनोमीटर डायमीटर होता है। शेप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका जो चार्ज होता है, इंटीरियर इज केप्ट नेगेटिव। व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज? सोडियम चैनल नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है, हमने आपको बताया था लास्ट टाइम, कौन बताएगा? To attract the positively charged sodium ions. Actually, sodium ion is surrounded by lot of water molecule, and
वाटर में से ड्रैग करता है। इसी आपको मैंने बताया था कि वाटर एब्जॉर्प्शन इज फॉलोड बाय द सोडियम एब्जॉर्प्शन। अब सोडियम ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, वाटर भी साथ में चला जाएगा सेल के अंदर। तो सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर ऑफ द सेल। जो वाटर कौन डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन हो गया, सोडियम हो जाता है। इसीलिए आपको याद होगा कि हमने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है, कि उसमें सबसे पहले क्या दवा देते हैं, क्या हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं हाइपरटेंशन में। अगर ब्लड वॉल्यूम घटाना हो तो क्या करेंगे, वाटर इनटेक घटा दीजिए। वाटर इनटेक कैसे घटा सकते हैं बॉडी के अंदर हम लोग, बाय टेकिंग लेस। क्या एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, ब्लड प्रेशर वालों को सबसे पहले क्या एडवाइस होती है, लेस सॉल्ट, सॉल्ट 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 इनटेक। तो वो आपसे पूछेगा भाई आप मेरा नमक क्यों बंद कर रहे हैं, आप क्या जवाब देंगे, आप उसको कुछ आंसर देंगे ना। वो कहेगा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, बट व्हाई यू आर रिस्ट्रिक्टिंग माय सॉल्ट, व्हाई यू आर advising me to take less salt, decrease salt in that intake. You have to answer this question, and the answer lies in this. Here is answer lies, because sodium, when there is absorption of sodium, there will be absorption of lot of fluid. Lot of fluid means water will be absorbed simultaneously. तो वो वाटर एक्युमुलेशन सोडियम कैसे होता है, और बॉडी फ्लूइड बढ़ जाएंगे, बॉडी फ्लूइड बढ़ जाएंगे तो टोटल ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टोटल ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, और भी सोडियम का रोल है, पर ये एक बहुत ही ग्रॉस, एक और भी हम लोग यूज करते हैं। आपने सोडियम रेस्ट्रिक्ट कर दिया और डाययूरेटिक दे देते हैं। डाययूरेटिक समझते हैं आप, एक ड्रग देते हैं जो किडनी पे एक्ट करती है और सोडियम लॉस कराती है। तो सोडियम लॉस होता है तो फ्लूइड लॉस होता है, फ्लूइड लॉस होता है तो क्या होता है, वीनस रिटर्न घटता है, वीनस रिटर्न घटता है तो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट घटता है, कार्डियक आउटपुट घटता है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर घट जाता है। तो पूरा कैस्केड आपने देखा ना। यू शुड अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन, कैसे कैसे इंटीग्रेट किया हुआ है एक दूसरे के साथ। अगर आप अब देखिए, ये जो प्रोटीन चैनल्स हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय द गेट्स, and there are two type of regulatory mechanism. What are the two type of regulatory mechanism? कौन बताएगा? voltage gated and ligand Very gated. ligand gated. Voltage का मतलब क्या है कि electrical potential difference will change will open the gate. इसी तरीके से केमिकल गेटिंग में क्या है कि केमिकल सब्सटेंस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग और क्लोजर ऑफ द गेट। वेरी गुड आंसर। एग्जाम्पल, यहाँ एसिटाइल कोलिन देखिए, देखा है ना, ये केमिकली बाइंड किया उससे और इसमें कन्फर्मेशनल चेंज हो गया, सोडियम एंट्री इनटू द सेल इंक्रीज। ये जब हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ेंगे तो केमिकल गेटिंग की बात आएगी, और जब नाउ में एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे, साल्टेटरी कंडक्शन पढ़ेंगे, तो वोल्टेज गेटिंग की बात भी आएगी। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इनकी स्टडीज कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पैच क्लैम्प टेक्निक्स। So now you can see in this slide, diffusion, active transport. Diffusion, simple diffusion, facilitated diffusion, no consumption of energy. Active transport, there is consumption of energy, यानी कि ATPase यहाँ पर एंजाइम इन्वॉल्व होगा। अब देखिए, सोडियम पोटेशियम पंप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने आपको बताया ना, इंटीरियर सोडियम कैप्ड लो बाय सोडियम पोटेशियम पंप, और एक्सटीरियर में कैसे होता है, पोटेशियम कैसे होता है। देखिए यहाँ पर पंप, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इस डायग्राम का फंक्शन क्या है कि इट इज एन एक्टिव पंप, इट विल पंप 3 सोडियम आउट ऑफ द सेल। देख रहे हैं आप, 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, एंड इट इज ब्रिंगिंग 2 पोटेशियम इनटू द सेल, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज वर्किंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सोडियम बाहर जा रहा है, इवन दो स्टिल द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज हाई इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, एंड पोटेशियम सेल के अंदर आ रहा है, तब जबकि पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा है। तो बोथ आर एक्टिंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बट दिस पंप इज परफॉर्मिंग दिस टास्क विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन ऑफ एटीपी। अब यहाँ पे नीचे देख रहे हैं आप, सो एटीपी इज कंज्यूम्ड एंड दिस विल ड्राइव दिस विल कॉज कन्फर्मेशनल चेंज इन सोडियम पोटेशियम पंप। सो सोडियम, अब इसके बराबर में एक देखिए एक चीज बनाई हुई हमने, लीक चैनल। लीक चैनल में क्या है कि जब लीक चैनल ऑपरेट, देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक यहाँ पर पहला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला आपका डायग्राम है, ये डायग्राम है सोडियम पोटेशियम पंप का। तो 3 सोडियम इज पम्प्ड आउट ऑफ द सेल एंड 2 पोटेशियम पम्प्ड इनटू द सेल। पर लीक चैनल में क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द दिस चैनल, व्हेन देयर इज अ स्टिमुलस, दिस चैनल विल ओपन, एंड व्हेन दिस चैनल विल ओपन, व्हाट विल हैपन,
sodium will move from outside towards the inside. Why? Because there is a concentration gradient. Leak channel is different type of system and sodium potassium pump is a different type of system. So एक में तो हो रहा है diffusion और एक में क्या हो रहा है active transport. I hope this part is clear to you. क्लियर हो गया आप लोगों को? ये जरा सा क्लियर कर लीजिए क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन होता है इसमें स्टूडेंट को. What is leak channel? There is no consumption of energy. Sodium move into the cell. But in case of sodium potassium pump, sodium will leave the cell against the concentration gradient with the help of consumption of energy. I hope this is clear. Clear हो गया आप लोगों को? Yes, sir. Okay, thank you. आगे बढ़े हम लोग. अब प्राइमरी, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी इसके सब डिवीजन है. प्राइमरी एक्टिव मतलब डिपेंडिंग अपॉन द वे दे कंज्यूम एनर्जी. देयर इज प्राइमरी एक्टिव एंड देयर इज अनदर वन इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव. और इसमें देख रहे हैं आप ये सोडियम पोटेशियम पंप की डिटेल्स हमने यहाँ पे लिख रखी हैं. दो सब यूनिट्स होती हैं, ए सब यूनिट एंड बी सब यूनिट. अब ये देखिए इसमें है ना 3 बाइंडिंग साइड फॉर सोडियम टुवर्ड्स द इंटीरियर एंड 2 बाइंडिंग साइड फॉर द पोटेशियम टुवर्ड्स द एक्सटीरियर. सोडियम विल मूव आउट ऑफ द सेल, पोटेशियम विल कम इनटू द सेल. जो ब्लैक लाइन है वो सोडियम की, जो रेड लाइन है वो पोटेशियम की है. एंड दिस पंप, अब इसमें एक और चीज कर रहा है ये पंप. एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहा है, एक चीज और कर रहा है. वो क्या कर रहा है? हाउ मेनी सोडियम इज मूव्ड आउट ऑफ द सेल? कितने सोडियम गए बाहर? 3 गए. और कितने पोटेशियम इनसाइड आए? हाउ मेनी पोटेशियम कम इनटू द सेल? 2. वेरी गुड. अब इस 3 and 2, 3 ion is coming into the cell and 2 is leaving the cell. What will happen? What will happen to the charge distribution? Charge distribution में क्या होगा? Outside it will be positively charged and inside of the membrane will be negatively charged. तो क्या हो गया? There will be redistribution of charges. Interior will become more positive or negative? Negative. नहीं. Because 3 is moving out, 2 is coming. Interior will become negative. Exterior will become positive. अब this pump is also known as electrogenic pump. Electrogenic pump का मतलब क्या है? There will be resting membrane potential. अगर आप 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो क्या होगा? एक सरफेस पर इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, एक इंटीरियर में लगा दीजिए. What will happen to these electrodes will record current. Why it will record current? Because there is difference in the ions, and this difference in the ion is called potential. This is called potential gradient. इसको हम कहते हैं electrogenic in nature. Pump is electrogenic in nature. It is creating electricity. Why? How it is creating electricity? By redistributing the positive ion and the negative ion. कैसे कर रहा है? 3 sodium goes out of the cell, interior will become negative, 2 potassium come into the cell. So there is gradual loss of 1 positive ion from the interior and it is accumulated towards the exterior. So exterior will become positive, interior will be negative. If you place 2 electrodes, one on the surface, another on the interior, it will record potential difference between these 2 interior and exterior. And this whole is called, because of this, it is called, the pump is electrogenic in nature. समझ में आया आपको? ये मेम्ब्रेन पे जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसमें इसका रोल है. सोडियम पोटेशियम पंप का एक रोल है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. तो अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट भी क्रिएट कर रहा है. समझ रहे हैं आप? It performs 2 important functions, and because of this, because of the electrogenic nature, it is responsible. It contributes in जो genesis of resting membrane potential में sodium potassium pump contribute करता है. It actively contribute for the genesis of membrane potential. आगे हम बात करेंगे membrane potential की डिटेल में, तो वहां पे sodium potassium pump फिर से बात कर लेंगे. If you have any queries, you can ask me. हर सेल में ये होता है. हर सेल के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप है क्योंकि सोडियम पोटेशियम दोनों रेगुलेट हो रहे हैं, वाटर भी रेगुलेट कर रहा है. आगे देखिए यहाँ पर काउंटर ट्रांसपोर्ट एंड को ट्रांसपोर्ट.
अब काउंटर ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं होता है एनर्जी का, इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन होता है। को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि दो सोडियम एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड इन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स कैसे होता है, थ्रू दिस मैकेनिज्म। को ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रोल प्ले करता है। तो अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड को ट्रांसपोर्ट। इफ इट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, like sodium is coming into the cell and potassium hydrogen ion is leaving the cell, so this is an opposite direction, and this is example of counter transport. So co-transport when when both the molecule move in same direction, and counter transport when the molecule move in opposite direction. एनर्जी कहां से आती है, वो एक देखिए, सोडियम पोटेशियम पंप पहले कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करता है, और उसके बाद सेकेंड राउंड में जो ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड्स का, ये इसको ड्रैग कराता है। ये फोर्स, ये जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर एनर्जी इससे कंट्रीब्यूट हो रही है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हाँ बताओ क्लियर नहीं हुआ सर? सोडियम पोटेशियम उन्हें काउंटर ट्रांसपोर्ट भी तो कह सकते हैं। देखिए ऐसा है ना, हमने आपको बताया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है एनर्जी, इसका एग्जांपल सोडियम पोटेशियम में देखिए ना, डायरेक्ट यूज हो रही है। अब सेकेंडरी में क्या है कि डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं हो रहा है एनर्जी का, इनडायरेक्ट हो रहा है। अगर आप पहले इधर देखें, ये एक डायग्राम बना हुआ है, ये काउंटर ट्रांसपोर्ट दिख रहा है आपको, लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें ये रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल सेल्स दिख रहे हैं, इसमें एक देखिए, एक सोडियम पोटेशियम चैनल दिख रहा है आपको। ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। यहाँ पर सोडियम इज मूविंग आउट ऑफ द सेल एंड पोटेशियम इज कमिंग इनटू द सेल। सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे सपोज करिए काम कर रहा है, तो अब यहाँ पर कौन, यहाँ पे देख रहे हैं आप एटीपी लिखा है, और सो सोडियम इज मूविंग आउट ऑफ द सेल, ठीक है, एंड पोटेशियम इज कमिंग इनटू द सेल। अब इनसाइड द सेल क्या हो रहा है, देयर इज इनसाइड द सेल क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस पंप व्हाट विल हैपन इनसाइड द सेल फॉर द सोडियम आयन, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या घट रहा है? सोडियम का घट रहा है, और ल्यूमेन में कंसंट्रेशन हाई है, तो क्या होगा कि देयर इज अ ड्रैग फ्रॉम द ल्यूमेन टुवर्ड्स द इंटीरियर। अब एक बाइंडिंग प्रोटीन है जिसमें सोडियम बाइंड करता है और उसी के साथ अमाइनो एसिड बाइंड कर जाता है। बिकॉज ऑफ दिस सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस बोथ मूव्स इनटू द सेम डायरेक्शन, even though the concentration of amino acid is high inside the cell, but because of the force of the sodium, dragging force of the sodium, because of the sodium concentration difference, it is moving into the cell. और सोडियम का कंसंट्रेशन कैसे क्रिएट हो रहा है, थ्रू प्राइमरी एक्टिव। सो प्राइमरी एक्टिव जो सेकेंडरी एक्टिव जो होता है, इट ड्राइव, इट गेट एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी एक्टिव। तो प्राइमरी एक्टिव तो उसमें वहां पर होगा ही होगा, सेकेंडरी एक्टिव ड्राइव एनर्जी, तो उसको कहां से बेनिफिट मिलता है, फ्रॉम द प्राइमरी एक्टिव। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया? यस, एनी क्वेरीज? रिस्पॉन्ड करो। अब अभी वीडियो दिखाते हैं, परेशान ना हो, अब वीडियो दिखा देते हैं तो क्लियर हो जाए। अब ये शीट, सेल्यूलर शीट में एब्जॉर्प्शन है, एक पैराग्राफ गाइटन ने दिया है, अगर आप इसको पढ़िए और लिखिए अपने आप से तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसमें सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट, काउंटर। इसको गाइटन में एक पेज दिया हुआ है इन्होंने सेल्यूलर शीट्स के एब्जॉर्प्शन, उसको पढ़िए और उसको पढ़ के जैसे ही आप लिखेंगे खुद से, each and everything will be clear to you. अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ठीक है?
ये शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है ये। जरा सा देखो यार कहाँ आता है इसका, वो आइकन नहीं नजर आ रहा मुझे। इसका आइकन जो है ना, ये शेयर वाला आता था ना, वो मीटिंग क्या, उसको नजर नहीं आ रहा। और जैसे वीडियो शेयर करना चाह रहे हैं, सिस्को खोल लिया, आप आ ही नहीं रहा है। और ये रहा शेयर, नीचे देख ही नहीं रहे, ऊपर देख। अभी आ गया, थैंक यू। अब मैं नीचे देख रहा हूँ, आ गया कुछ, चला दें। हाँ, अब आप लोग को नजर आ रहा है ये वॉइस वीडियो? Activity is the ability to move materials आ into रही है and आवाज आप out लोगों of को? cells. वीडियो नजर आ रहा है? दिस इज विजिबल टू यू? ओके। This is important in cell communication and normal cell function. For example, in order for the cells of your nervous system to function properly, ions, water, proteins, and other molecules need to be able to pass into and out of cells. The cells of the nervous system form networks. They, like all cells, are able to function because they can control what substances are inside the cell and what substances stay outside the cell. These materials move in and out of cells by passing through the plasma membrane of the cell. The plasma membrane surrounds the cell and separates the interior of the cell from its environment. This semi-permeable membrane is composed of a lipid bilayer. Phospholipids make up a large part of the membrane and form a bilayer. The structure of the bilayer is due to the tail-to-tail packing of the nonpolar hydrophobic tails, composed of 2 fatty acid chains, and the polar hydrophilic heads, composed of glycerol and phosphorylated alcohol. The lipid bilayer is 5 to 10 nanometers thick and is embedded with proteins. Some cell membranes also contain cholesterol. A plasma membrane contains different types of proteins which are specific to the particular function of the cell. These proteins also enable the cell to interact with its environment. The entire structure of the plasma membrane can be described as a fluid mosaic model. The phospholipid bilayer has properties resembling fluids, and the differing proteins and their attachments on either side of the membrane resemble a mosaic. The plasma membrane is the gatekeeper of the cell, allowing certain substances in and out of the cell at certain times in certain amounts. Diffusion is a process in which substances move across a membrane from an area of high concentration to an area of lower concentration, or between areas of opposite electrical charges. This is called the electrochemical आवाज आ रही है आप लोगों को? वीडियो नजर आ रहा है आप लोगों को? gradient. Small, non-charged particles, primarily gases such as oxygen and carbon dioxide, can diffuse through the plasma membrane by moving in between the phospholipids in the bilayer. However, the cell needs to control what enters and leaves, and so transport proteins aid in the selective movement of other molecules across the membrane without the input of energy. Through facilitated diffusion, larger molecules, polar molecules, and charged ions use channel proteins embedded in the bilayer. The transport of other substances requires a special carrier that will bind the substance on one side of the membrane, which triggers a conformation change in the protein carrier, causing it to release the substance on the other side. When the substance being moved across the membrane is water, the process is called osmosis. The cytoplasm of the cell, as well as the interstitial fluid, is composed of solutions. The solvent, usually water, moves across a semi-permeable membrane toward a higher solute concentration, consisting of various molecules or ions, until equilibrium of the solutions is reached. The plasma membrane contains proteins called aquaporins, which are specialized channels for the movement of water during osmosis. A cell in a hypertonic environment will have water move from the inside of the cell toward the higher concentration of solutes in the solution outside the cell.
In a hypotonic solution, the concentration of solutes is higher inside the cell than the outside environment, so water will diffuse into the cell. When the solutions on either side of the membrane reach equilibrium, they are referred to as isotonic. When substances need to be driven against their concentration gradient from low to high concentrations, active transport is required. This sodium potassium This pump है, process uses 3 energy to sodium move a move out substance of the across cell. the membrane using देखा आप लोगों ने 3 सोडियम, देखिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसको गौर से देखिए. side of the membrane reach equilibrium, they are referred to as isotonic. ये देखिए When substances 2 need to potassium inside आए, अब 3 be sodium will driven move against their concentration move out of the gradient cell. from low to high concentrations, active transport is required. This process uses energy to move a substance across the membrane using selective protein carriers. क्लियर हुआ आप लोगों को एक्टिव ट्रांसपोर्ट? यस, वेरी गुड. The sodium-potassium pump is a specialized membrane protein carrier, common in most animal cells, that moves sodium and potassium ions across the plasma membrane. ATP fuels the pump in the movement of these ions from low to high concentrations, moving sodium ions outside of the cell where they become concentrated and bringing potassium ions into the cell where their concentration is higher relative to the outside. In other instances of active transport, the concentration gradient created from the action of one pump can be used as the input of energy to drive a different pump, a process known as coupled transport. The large concentration gradient of sodium ions is used to bring glucose into the cell against ये its को ट्रांसपोर्ट देखा आपने सोडियम और ग्लूकोज का. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने हेल्प करी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को. अब क्लियर हो गया होगा ना आप लोगों को? क्लियर है? ओके. concentration gradient. The plasma membrane, with its lipid bilayer and various embedded proteins, provides a barrier between the internal cellular environment and the environment surrounding the cell. The structure and function of the plasma membrane, coupled with the processes of moving materials into and out of cells, allow for the metabolic action cells need to function, as well as for the continuation of life. ओके, थैंक यू. अब शेयर करना होगा. अब आपको स्लाइड दिख रही है दोबारा से? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, प्राइमरी डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव, सब बहुत कुछ नजर आ रहे हैं, क्या बात है. चलिए, वेरी गुड. अब आप लोगों को हमने एक असाइनमेंट दिया है इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन पे. असाइनमेंट दिया था, गूगल कोड मिल गया क्लास, आप लोगों को गूगल क्लास कोड मिल गया, सब लोगों को शेयर करा दिया स्टूडेंट ने. आप थैंक यू, सबको मिल गया है, वेरी गुड. अब इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन पे आपको जो है वो नहीं मिला. अब तो समझ क्यों तुम सैड हो रहे हो? व्हाई यू आर सैड? बताओ, क्या चीज समझ में नहीं आई आपको? क्या, किसके बारे में? असाइनमेंट में हमने आपको टॉपिक बताया था इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन. इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन में आपको गेनोम में जाना होगा. गेनोम में ही दिया हुआ अच्छे से, गेनोम खोलनी होगी और उसको पढ़ना होगा. इसमें आपको, हमने आपको यहाँ पर देखिए लिखा है, ये व्हाट यू विल डू, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, डिस्कस द मैकेनिज्म. ये तो मैं कर लिया, ट्रांसपोर्ट तो कर लिया. रोल ऑफ इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन इन नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड देयर डिजीजेस. ठीक है, अभी हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन पे. हमने असाइनमेंट इसलिए दिया है जनरल, अभी हम इसको आखिर में डिस्कस भी करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं ना कि ये थोड़ा टफ टॉपिक, प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लें ताकि आप जो समस्या बात की जा सके. आई रिक्वेस्ट टू माय स्टूडेंट कि आप वो, तुम लोग गाइड गेनोम खोलो, उसमें पढ़ो.
इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, और इन क्वेरीज पे आंसर करो। ये क्वेरीज देखिए आप लोगों को, इन इन हेडिंग्स में यू हैव टू आंसर, ये आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी है। एंड सबमिटेड असाइनमेंट, मैंने आपको असाइनमेंट डेट भी दे रखी है, ठीक है। टास्क भी गूगल क्लास कोड खोलोगे ना तो उसमें मिल जाएगा तुमको, गूगल क्लास में हमने दे रखा है कि क्या करना है, और डिटेल लोड कर देंगे। और आखिर में जब हम न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। शॉर्ट में हम बता दें कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, देयर आर 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, गैप जंक्शन कम्युनिकेशन, सिनेप्टिक कम्युनिकेशन, न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से निकलता है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में अप्लाई हो जाता है। पैराक्रीन, एंडोक्रीन सिक्रीशंस, हार्मोन्स है ना, एग्जाम्पल है। अब और भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, सेल कम्युनिकेट फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है। न्यूरल सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, थ्रू इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म और थ्रू केमिकल मैकेनिज्म। और भी एक तरीका है, एक और जो होता है थ्रू फेरोमोन्स, वो रिप्रोडक्शन में एनिमल्स में काम आता है। केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज बाय वन एनिमल एंड दिस विल एक्ट ऑन द अदर पार्टनर एंड दिस विल एक्टिवेट द रिप्रोडक्टिव साइकिल। आप जाइए उसको पढ़िए, और उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म है, केमिकल सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम है, तो उसको पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा खुद भी हेल्प करें। ये देखिए सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, केमिकल मैसेंजर सिस्टम से ना, सेकेंड कम्युनिकेशन वाया केमिकल मैसेंजर सिस्टम, ठीक है ना। केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल वन सेल सिक्रेटिंग which is released into the interstitial space, acting on the receptor and activating the second system। अब उसमें सेकेंड मैसेंजर सिस्टम भी आता है, कैल्शियम इंटरसेलुलर, कैल्शियम रोल प्ले करता है, ठीक है ना। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सिस्टम, IP3, साइक्लिक एमपी, ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारे जो है ना कम्युनिकेशन चैनल्स है। सेल एक सेल से दूसरे सेल कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। अगर सेल आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो बॉडी फंक्शन करना स्टॉप कर देती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप जाइए गेनोम खोलिए, असाइनमेंट करिए, ये उसके मैकेनिज्म है, डिफरेंट मैकेनिज्म है जिससे थ्रू एक्ट करता है, ठीक है। एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं इसका कम्युनिकेशन का, तो आपको क्लियर हो जाएगा वीडियो कि क्या है एक्चुअली। बहुत सारा ये टॉपिक कवर होगा आपका सेलुलर कम्युनिकेशन बायोकेमिस्ट्री में, लेकिन फिजियोलॉजी में तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। In this lecture video, we will continue our discussion of membrane-bound mediated responses, and we're going to do that by specifically focusing on G protein-linked receptors, and we're specifically going to First messengers are extracellular signaling molecules such as hormones or अभी आप परेशान ना हो, सैड ना हो, नो 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 नीड टू वरी। काम मिला तो सब लोग परेशान होना शुरू हो गए। जरा ये देखो यार कहाँ पे फिर रुक गई है जाके। हाँ थोड़ा आना पड़ेगा। ये मीटिंग का जो है शेयरिंग वाला भाग जाता है, पता नहीं कहाँ भाग जाता है। अब ऊपर चला गया, स्टॉप शेयरिंग करेंगे, स्टॉप शेयरिंग करेंगे, अब फिर शेयर करेंगे। शेयर शेयर करेंगे हम लोग। देखिए सेल कम्युनिकेशन कैसे होता है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? हाँ, अब देखिए सेल कम्युनिकेट फ्रॉम वन सेल कम्युनिकेट टू अनदर। एक सेल अगर कोई चीज प्रोड्यूस करी या कोई फंक्शन किया तो वो सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है। सारे सेल बॉडी में क्रॉस टॉक करते हैं, एक दूसरे से टॉक करते हैं, ऑर्गन भी क्रॉस टॉक करते हैं।
तो कोई सब्सटेंस रिलीज हुआ, थायराइड से रिलीज हुआ, तो T3 T4 दूसरे सेल्स पे एक्ट करता है, जो BMR इंक्रीज कर देता है। लेकिन उसकी एक पूरी मशीनरी है, कैसे काम करता है T3 T4 दूसरे सेल्स पे, उसका एक मैकेनिज्म है। अब एक एग्जांपल हम आपको शो कर रहे हैं, आप जब गाइडेंस गेनोम पढ़ेंगे तो उसमें ये neurotransmitters. In response to Try messengers to- are extracellular signaling वीडियो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? वीडियो आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, such as hormones or neurotransmitters. In response to exposure to these first messengers, intracellular signaling molecules called second messengers are released by the cell. Two second वॉइस आ रही है? जरा काशिफ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट कह रहे हैं बैंडविड्थ लो हो रही है। तो जरा सा ये देखो यार, इसमें मोशन भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहने का मतलब ये। वीडियो आ रहा है आप लोगों को? वो पुअर क्वालिटी ऑफ नेटवर्क, ये सब वीडियो हम आप लोगों को दे देंगे पेन ड्राइव में, आप लोग वो परेशान ना हो बिल्कुल। यू विल गेट वीडियो इन योर पेन ड्राइव। जरा देख लो, टाइम कम है यार, है ना? तो शायद मोशन या वो ये मैसेज आ रहा है अभी, टू मेनी ओवरलैपिंग विंडोज। तो बंद कर रहे हैं, इसको भी मिनिमाइज कर रहे हैं, मिनिमाइज हो जाएगी। अब ये बताओ, ये देखो कि ये स्टॉप शेयरिंग, इसमें कंटेंट वीडियो आ रहा है, नहीं आ रहा है? शेयर कर रहा है, ये तो बैंडविड्थ की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए वीडियो, देखिए एक एग्जांपल ऑफ इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन। आवाज आ रही है आप लोगों को? अब देखिए आप लोग, cellular signaling molecules such as hormones or neurotransmitters. In response to exposure to these first messengers, intracellular signaling molecules called second messengers are released by the cell. Two such second messengers are IP3 and DAG. Calcium is also an important second messenger. Transient increases in cytoplasmic calcium ion levels are caused by the binding of some hormones and signal molecules, and this can send important intracellular signals by activating calcium-binding proteins that then perform various functions. Note that cytosolic increases in calcium concentration can occur in two ways. Second messenger IP3 can open reservoirs of calcium within the cell, namely the endoplasmic reticulum and calciosomes. Otherwise, cyclic AMP can activate the opening of calcium channels in the plasma membrane so that extracellular calcium can rush in. G-protein coupled receptors, or GPCRs, are integral membrane proteins, meaning that they are locked into the cell membrane. They are locked in via 7 transmembrane alpha helical segments. GPCRs recognize ligands through an extracellular recognition site. They also have an intracellular recognition site for a G protein. When a ligand binds the extracellular recognition site of a GPCR, this induces a conformational change, activating the G protein. There are different kinds of G proteins, sometimes also called membrane-associated heterotrimeric G proteins. GS activates adenylyl cyclase. GI inhibits adenylyl cyclase. GQ has 3 subunits, alpha, beta, and gamma. A conformational change in the GPCR activates the G protein. When this happens, the ADP on the G-alpha subunit gets replaced by ATP. This drives dissociation of the G-alpha subunit from the G-beta-gamma complex. The now free G-alpha subunit can activate phospholipase C-beta. Once it is activated by a G protein, phospholipase C-beta can break down PIP2. Phosphatidylinositol 4P, or PIP, and phosphatidylinositol 4,5-biphosphate, or PIP2, are produced through successive phosphorylations of phosphatidylinositol, or PI.
PIP2 is hydrolyzed by phospholipase C to produce inositol 1,4,5 triphosphate, or IP3, and diacylglycerol, or DAG, both of which act as second messengers. IP3 is hydrophilic and diffuses into the cell, while DAG is lipophilic and hence remains in the cell membrane. IP3 binds to calcium channels on the endoplasmic reticulum, or the sarcoplasmic reticulum in the case of muscle cells, and allows release of calcium from the endoplasmic reticulum lumen. DAG, with the help of the calcium released from the endoplasmic reticulum, activates the calcium-dependent protein kinase C. Once activated, protein kinase C adds phosphates to target proteins and causes cellular responses. If you enjoyed this video, the link to my Patreon. If you have any topics you'd स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? वॉइस आ रही है आप लोगों को? देखिए, ये कंसेप्ट है सेल टू सेल कम्युनिकेशन, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। ओके, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन आप लोगों को क्लियर हुआ थोड़ा सा? अब ट्रांसपेरेंसी दिख रही है आप लोगों को? ये पीपीटी दिख रहा है आप लोगों को? पावर पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स? पावर पॉइंट दिख रहा है? थैंक यू सर, क्यों लिख रहे हो भाई? अभी एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसको खत्म करेंगे, एपोप्टोसिस। एग्जैक्टली 10 o'clock पे खत्म कर दें अभी, सॉरी 11 o'clock पे स्टूडेंट्स। जी, सो नाउ आई एम, इसमें एक जैक स्टैट मैकेनिज्म होता है। एपोप्टोसिस पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे? बताइए क्या क्या है। जरा काशिफ देखो यार, ये क्या डिस्कनेक्ट हो गया है? तालियां बजा रहे हैं अभी तो। यस, क्लैपिंग फॉर व्हाट? अब्दुल समद क्या हुआ बताओ, आवाज नहीं आ रही आपकी। नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे? अच्छा, एपोप्टोसिस की बस एक लाइन सुन लो, बोले? यस आप तो, अच्छा बोल रहे हैं। आप लोग जानते हैं कुछ एपोप्टोसिस के बारे में? Programmed cell death. वेरी गुड, पीसीडी प्रोग्राम। सेल इज प्रोग्राम टू डाइट इटसेल्फ आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। सेल जो है वो ऑटोमेटिकली डाई कर जाता है आफ्टर परफॉर्मिंग इट लाइफ साइकिल। और अगर नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस में क्या फर्क होता है कि एपोप्टोसिस इज नेचुरल फिनोमिना एंड इट इज अ लाइफ साइकिल ऑफ द सेल। नेक्रोसिस में क्या होता है? इट इज अ पैथोफिजियोलॉजी, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन कॉजेज सेल डेथ। ये दो चीजें होती है। अब एपोप्टोसिस इज द नेचुरल मैकेनिज्म फॉर द सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ। आफ्टर परफॉर्मिंग इट फंक्शन सेल विल डाई। और नेक्रोसिस में क्या होता है? some pathogen resulting in inflammation, infection, leading to unnatural, untimely cell death. ये basic difference है। But why there is need of programmed cell death in body? इसकी क्या importance है? आपको बहुत common example बताएं, जो epithelial tissues loss होते हैं, what is a part of programmed cell death? Connections in the brain is performed by